Welcome, parents. I'm honored to have you all in today's session. I'm Advocate Sandhya Mishra. I'm closely working with India's top-notch schools, and also I'm associated with rural schools for building their safety mechanism. I'm also working for cognitive behavior coaching, life coaching, and parents coaching. I'm working with rural schools for the child safety and security. I'm working with various schools for building the mechanism, the protocols, the policies, and the facilities how they can provide the security, the safety to those kids who are under their charge. Basically, I work for kids and adults and for their safety, security, their self esteem, and also their confidence. So, let's start. Today, we are discussing about violence. What is violence? Can someone answer, please? Okay. So, violence is a behavior in which we may harm, damage, or hurt someone physically or mentally, or both. As per World Health Organization, violence is defined as the intentional use of physical force or power, threatened or actual harm against oneself, another person, or against a group or community that either results in or has a high likelihood of resulting in injury. This can cause death, psychological harm, and mental harm. And most importantly, violence can be done against the kids because they are the most easy target. अगर हम बच्चों के अगेंस्ट ऐसी कोई वायलेंस करते हैं, ऐसी कोई एक्शन करते हैं, तो बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनको इजी टारगेट बनाया जाता है. Violence can come in many ways, but majorly it is defined as abuse, neglect, then it can be defined as violence by the community or a group of person, and exploitation. So, dear parent, what is abuse? Abuse can physical, emotional, psychological, or sexual. Abuse means improper use of something, where we use someone in a way that is harmful and morally wrong. So, guys, when we sexually exploit anyone, we sexually abuse someone, it is abuse. When we beat someone, it is abuse. When we scold someone in a very wrong way, we touch someone in a very wrong way and with a wrong intention, then it is abuse actually. So, what is neglect? Neglect is a situation in which you do not give enough care, protection, attention, or affection to the person who are under your charge. वायलेंस बाय ग्रुप और कम्युनिटी मींस अगर हम बच्चों को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करते हैं या पॉलिटिकल प्रचार करने के लिए यूज करते हैं, किसी बच्चे को हम किसी ऐसे काम में जैसे स्मगलिंग में यूज करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, all these are violence by a community or a group of person. Then finally, the exploitation. What is exploitation? The action or fact of treating someone, the action of fact. एक्सप्लॉयटेशन तभी हो सकता है जब वहां पे एक फैक्ट, वो एस्टैब्लिश फैक्ट हो. So treating someone unfairly, this is an act of selfishly taking advantage of other. For example, you have adopted someone and who won a lottery, or who won some property, or who gained some property, एंड उस प्रॉपर्टी को हमने उसके परमिशन के बिना, उसकी इजाजत के बिना किसी और को बेच दिया. तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज वो कुछ बोल नहीं सकता, वो मेंटली फिट नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले सके, और हमने उसको उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया. तो दिस कैन बी एक्सप्लॉयटेशन. आपके घर में एक मेड है जो बहुत गरीब है और आपने उसको अपने घर के काम के लिए रखा हुआ है, बट आप पैसे नहीं देते. दिस इज एन एक्सप्लॉयटेशन. So, concern of present era. The next slide is concern of
present era. What are the concerns? आजकल हम क्या क्या इश्यूज एज अ पेरेंट, एज स्कूल, एज कम्युनिटी हम क्या क्या फेस करते हैं? फर्स्ट, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल फोन देखता है, मेरी बात नहीं सुनता, और बहुत ज्यादा उसका स्क्रीन टाइम है। गाइस, दिस इज आवर फॉल्ट। हमने उनकी एनवायरनमेंट ऐसी बना दी है कि उनको कहीं तो कुछ तो चाहिए अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए। Why or he or she is behaving so violent? Why during their adolescent time they don't want to share their things with you? Why the kids is not listening to me? This is the concern of present era. His or her school is not performing as per my expectation. मैंने जिस तरह से स्कूल के लिए सोचा था, स्कूल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. What about the security of my kid in a school? ये सारे आजकल के मेजर कंसर्न है जो पेरेंट सोचते हैं. एक 7 साल के बच्चे की मर्डर 2017 में जो हुई थी, वो पूरे दिल्ली एनसीआर, पूरे इंडिया को उस इंसिडेंट ने दहला के रख दिया था. उसी स्कूल के एक और सीनियर बच्चे ने उस बच्चे का गला काट दिया था, बिकॉज वो पीटीएम पोस्टपोन करना चाहता था. फॉर दैट रीजन वो उस बच्चे की मर्डर उसने कर दिया था, और वो स्पॉट डेथ हो गया था बच्चे का. अनदर इंसिडेंट वाज लखनऊ में एक 11 साल की बच्ची ने एक क्लास 1 के बच्चे पे अटैक करा, और बहुत ज्यादा उसको अटेम्प्ट टू मर्डर था वो केस, जस्ट बिकॉज स्कूल की छुट्टी चाहिए थी. तो इसीलिए उसने इस तरह के एक्शन लिए. आजकल के बच्चे इतने वायलेंट क्यों बिहेव करते हैं? इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप वो इतनी इजीली कैसे ले सकते हैं? कैसे ले लेते हैं? क्या हमने इस पे कुछ कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है, दिस इज द राइट टाइम गाइस, प्लीज थिंक ऑन दिस. बिकॉज इफ अगर अब अभी हमने नहीं सोचा, देन इन फ्यूचर ये जो कम्युनिटी है, ये जो हमारी वल्नरेबल ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती है. तो एज पेरेंट, एज कम्युनिटी, एज स्कूल, वी ऑल नीड टू थिंक कि हमारे बच्चे इतने वायलेंट, इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले लेते हैं. Latest data from the National Crime Records Bureau shows that the number of death by suicide in students saw an increase of 4.5% in 2021 and 22. पेरेंट्स, बिलीव मी, ये जो नंबर, ये जो आंकड़े हैं, ये सारे 18 साल से नीचे के हैं, जिनमें से 10,233 बच्चे, और एक्चुअली 864 बच्चे, उनकी डेथ उन्होंने सुसाइड कर ली थी बिकॉज फैमिली में डिस्टरबेंस था. तो क्या एज पेरेंट, एज फैमिली, एज कम्युनिटी हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेस में आके, इतना ज्यादा डिस्टर्ब होके इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं? अपनी जान लेना इतना इजी नहीं होता, इट्स वेरी टफ. बट आजकल के बच्चे बहुत इजीली ये चीज कर लेते हैं, क्योंकि जो जिंदा रहने टाइम पे जो उनकी सरकमस्टांसेस है, उससे उन्हें मौत इजी लगती है. एंड इफ दिस इज द सिचुएशन, तो वी नीड टू थिंक एंड वी नीड टू डू समथिंग फॉर दिस. व्हाट इज द रीजन वाई, वेर आर वी फीलिंग जो वायलेंट बिहेवियर है बच्चों में, वो क्यों है? एक्सपोजर टू वायलेंस इन होम और कम्युनिटी. अगर घर में वो इस तरह के एनवायरनमेंट देखेंगे, कम्युनिटी में ऐसे एनवायरनमेंट देखेंगे, तो वो वही सीखेंगे. बीइंग द विक्टिम ऑफ फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज. जब बच्चे के अगेंस्ट कोई फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज करता है, तो उनके पास वर्ड्स नहीं होते, तो वो बोल नहीं पाते कि वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं, जो उनके अंदर एंगर को डेवलप करता है, और वो एक्सट्रीम होके ही बाहर आ जाता है. विक्टिम ऑफ बुलिंग और रेगुलर बुलिंग. हमें लगता है कि एक दो बार अगर हमने किसी को बुली कर दिया तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा. डेफिनेटली करेगा. आप एक बार गधा बोलो, 10 बार गधा बोलो, इम्पैक्ट सेम ही होना है. जब आप रेगुलर बुलिंग करोगे, तो वायलेंस बिहेवियर में इंक्रीज दिखेगा, ज्यादा ज्यादा इंक्रीज दिखेगा. जब आप किसी को बुली करते हो, वो उस तरह की सिचुएशन ढूंढता है जहां पे वो किसी और को जबरदस्त बुली कर सके, इसीलिए वो इतना वायलेंट बिहेव करता है. एक्सपोजर टू वायलेंस इन मीडिया, टीवी. जो टीवी में फाइटिंग, जिस तरह की चीजें देखेंगे, उसी तरह की ये चीजें खुद करेंगे भी.
तो क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. Combination of stressful family, socio-economic factors, these are also responsible. Then substance abuse at very early stage. जो मेट्रो सिटीज होती हैं, ये बहुत नॉर्मल है कि बच्चे 9th ऑनवर्ड्स सब्सटेंशियल अब्यूज के तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज? ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, टेकिंग स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, दीज आर ऑल सब्सटेंस अब्यूज. तो बच्चे ये सब भी अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज वो कम्युनिटी में, वो अपने घर में वो चीज देखते हैं. बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे. सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. AK जोशी, प्रोफेसर एंड हेड सोशियोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्टेटेड academic stress is an obvious reason for which students are taking their lives. After studying to a certain level, when they feel they are supportless or he or she can't fulfill their own or their parents' role, expectation, a role conflict starts within the student. जब उनको लगता है कि मैं अपना एक्सपेक्टेशन और अपने मदर फादर का एक्सपेक्टेशन और टीचर का एक्सपेक्टेशन और एक्सटेंडेड फैमिली का एक्सपेक्टेशन मैं नहीं पूरा कर सकता, वो खुद को फेलियर समझते हैं. और ये जो फेलियर का सेंस, आप भी कभी सोचना एज अडल्ट, एज अ पेरेंट, जब आपको फेलियर फील होता है तो आपको कैसा लगता है. जब ये कंटिन्यूअस फेलियर बच्चों में फील होता है तो दे टेक देयर लाइफ, बिकॉज वो इजी लगता है उनमें. रेगुलरली इतना पेन झेलने से अच्छा है उन लोगों के हिसाब से एक ही बार पेन लो और लाइफ को एंड कर दो. Then Pradeep Kumar Saha, Director of Institution of Psychiatry, Kolkata, said, fear of failure is a leading cause of suicide among students. When students pass through an unsuccessful phase in their life, everything seems pessimistic to them. They feel their future is bleak and this may result in committing suicide. So ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा एक के बच्चे के दिमाग को इफेक्ट करता है, जिससे वो सुसाइडियल थॉट्स और एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए बच्चा मजबूर हो जाता है. देन व्हाट आर द लॉज ऑफ द लैंड? लॉज ऑफ द लैंड, हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम इतनी इम्प्रूव कर चुकी है. बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी स्कूल में कैसी होनी चाहिए, घर पे कैसी होनी चाहिए, पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने बना के दिया है. इट्स जस्ट कि वी नीड टू स्टडी दैट. राइट टू चिल्ड्रन एजुकेशन एक्ट अपने शेड्यूल्स में पूरा फ्रेमवर्क, कैसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल की कैसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए, उस पर डिटेल्ड उन्होंने अपना डिटेल्ड उस पर एक्सप्लेनेशन है. देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, उन्होंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को, जो बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी को 8 पैरामीटर्स में उन्होंने डिवाइड करा है. व्हाट आर दोज 8 डिविजन्स? फूड, वाटर, एयर, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट सेफ्टी फॉर लाइफ एंड डिग्निटी, देन साइबर सेफ्टी. These are the 7, and one is transport safety. 8th one is transport safety. So let me repeat once again: food safety, water safety, air safety, medical safety, transport safety, building safety, student safety for life and dignity, then cyber safety. These are the 8 chapters in which the whole safety structure is divided, and school needs to act on that. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी एक एक स्टेप अपनी गाइडलाइन जो उन्होंने 2021 में इशू करा था, उसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है. Dear parents, if you want to learn about these guidelines further, please email me. We have separate session for the detailed learning of these guidelines, so we will address that. Then again, कि बाउंड्री वॉल आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिकल टाइप, ये सारे हैं नहीं है, ये बहुत सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गाइडलाइंस में कवर्ड है. नेशनल कमीशन भी कवर करता है इसको, और राइट टू चिल्ड्रन एजुकेशन एक्ट में भी इसका मेंशन है. देन व्हाट आर द सॉल्यूशन एंड स्ट्रैटेजीज? बच्चों को कैसे आप सेफ रख सकते हैं? एक है कि रेगुलर इंटरैक्शन
with the school to know their safeguard mechanism. Feedback to school and equal participation with school in child's physical and mental growth. Dear parent, जब बच्चा स्कूल में है और हमने स्कूल में अपना बच्चा भेजा है, हमको स्कूल के साथ पार्टनरशिप करनी है, उससे बच्चे का ग्रोथ होगा और स्कूल का भी डेफिनेटली ग्रोथ होगा. School needs to conduct regular sensitization programs for parents for the well-being of the kids in terms of their psychological health, their mental health, then social learning, then also the sensitization programs for prevention of bullying, corporal punishment. Then as parent we need to learn what are the type of abuse जिससे हम अपने बच्चे का सेफगार्ड कर सके, और स्कूल भी अपने तरफ से उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स वो कंडक्ट कर ले. द रोल ऑफ पेरेंट्स मस्ट बी रीएनफोर्स्ड इन पेरेंट टीचर मीटिंग, रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस अदर स्कूल्स कमिटीज. पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत जरूरी है, एंड इट इज मैंडेटरी टू हैव अ पेरेंट्स रिप्रेजेंटेशन in school safety committee. Parents must be motivated to support the school in bullying prevention efforts. They must be sensitized so that they can build on they can work on their kids self esteem and confidence. Then also how to deal with the anxiety, the stress while when the kid is bullied in school or in the community. डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव स्कूल सेफ्टी पॉलिसी. हर स्कूल का एक सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, एंड पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर अबाउट the safety policy in that school. Parents should boost their child's self-esteem, praise in his or her little achievements. Stop reacting to your child's mistake. आप अपने बच्चे के साथ खड़े हो, बच्चे के चीयर लीडर बनो, उसको डराओ नहीं, उसके फियर लीडर मत बनो, उसके चीयर लीडर बनो ताकि बच्चा ग्रो करे और ग्रो करे. A parent build principles in child. Don't as parent we need to build principle in our child. So don't instruct, discuss with the child. जब आप इंस्ट्रक्ट करोगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही होगा. आप डोमिनेंस दिखाओगे वो भी डोमिनेंस ही दिखाएगा. आप अगर उसके साथ डिस्कस करोगे, दोनों का एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा, तो वो दोनों के ग्रोथ के लिए एज पेरेंट आप ग्रोथ करोगे और डेफिनेटली आपका बच्चा ग्रो करेगा ही करेगा. देन ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम व्हेन ही और शी फेल्स. जो डोंट पिन पॉइंट देयर फेलियर्स. आप खड़े हो उसके साथ उसको हेल्प करने के लिए, उसकी गलतियों को उसको दिखाने के लिए नहीं. आप उसको छोटा दिखा के आप बड़ा नहीं बन सकते. So that's why you need to be very careful in that. Then the next is I think positive parenting. What is positive parenting? ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा एक 8 साल की बेटी है, तो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, positive parenting. When it comes to family life, everyone strives to figure out how the relationship between parents and children can become ideal. Positive parenting techniques work well for raising children with discipline and good moral. Discipline मतलब ये नहीं है इंस्ट्रक्शन. डिसिप्लिन मतलब आप अपने बच्चे के साथ बैठो, कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करो. अगर आपसे गलती हो गई तो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी. जैसे आप वॉक करोगे या आप एक्सरसाइज करोगे 2 दिन, या फिर आप अपना फेवरेट डिश नहीं खाओगे, ये आपकी कॉन्सिक्वेंसेस होगी अगर आपने उसे डांटा या पब्लिक ह्यूमिलिएट करा. सिमिलरली अगर उसने होमवर्क नहीं करा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, वो क्या क्या उसको पनिशमेंट जो मिलेगा वो किस तरह की मिलेगा. एंड पनिशमेंट कांट बी फिजिकल अब्यूज, can't be emotional torture, and definitely it can't be public humiliation or any type of humiliation. तो किस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए, क्रिएटिव पनिशमेंट एज पेरेंट आप डिसाइड करो और अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ बैठ के उसकी एक आप अपनी दोनों की कॉन्सिक्वेंसेस लिस्ट बनाओ कि कौन, जब आप गलती करोगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा. It is important to know that parent-child relationship is a two-way street.
ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज आप बड़े हो, आप उसके फादर हो या मदर हो, तो यू हैव द ऑथोरिटी टू scold him या फिर टू abuse him physically या फिर टू public humiliate him to lower their confidence. ये आपकी अथॉरिटी नहीं है. आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप अपने बच्चे को सही राह दिखाओ. जब वो जाए, गिरे, वो गिरेगा, आप उसके हाथ पकड़ के बोलना कि खड़ा हो जा, मैं पीछे खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा. आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब मैं साइकिल सीख रही थी तो पापा हमेशा मेरे साइकिल के पीछे रहते थे पकड़ के, और मैं चलाती थी, पापा पकड़ के रहते थे. 2-3 राउंड के बाद पापा ने कब छोड़ दिया मुझे याद ही नहीं था, और मैं साइकिल सीख गई. पर जब वो 2-3 बार मुझे पकड़ के चला रहे थे, सिखा रहे थे, मैं 2-3 बार गिरी, बीच बीच में इरिटेट भी हो गई, और मैंने बोला पापा मुझे नहीं सीखना, नहीं सीखना, मुझे साइकिल नहीं चलाना, आप ही मुझे जो है सिखा दो. और पापा ने मुझे कभी गुस्सा नहीं करा. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी लाइक दैट पेरेंट. योर पेरेंटिंग स्किल नीड्स टू बी लाइक दैट. आप उसके साथ खड़े हो, आप उसको नीचा दिखाने के लिए खड़े नहीं हो. A garden with different flowers become beautiful when it blossoms. Similarly, if parent learn how to be a gardener and are able to recognize their children's personality, nourish it, then their garden will become fragrant. This is what positive parenting is all about. First of all, trust your kid. मुझे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा ना स्टोरी कुक करता है. करता होगा, बट आप उसको दिखाओ ना कि नहीं बच्चा, जो भी तुम बोल रहे हो, तुमने एक बड़ा भालू देखा, मैं ट्रस्ट करती हूँ बेटा, तुमने जरूर एक बड़ा भालू देखा होगा. हाँ, उसके बाद में आप ये इंक्वायरी करो ना कि उसकी स्टोरी में कितनी सच्चाई है, कितना वो झूठ बोल रहा है, और उसके हिसाब से उसको समझाओ. पर अगर आप बिगिनिंग से बोल दोगे तू तू जो बोल रहा है वो झूठी बोल रहा है, तो जिंदगी में वो कभी आपको आके सच बोलेगा भी नहीं. क्योंकि जब अगर उसने सच बोला था या उसकी थॉट प्रोसेस उसने आपके साथ शेयर करी, आपने उसे टोक दिया, तो इन फ्यूचर भी वो कभी शेयर नहीं करेगा. सिमिलरली बी द चीयर लीडर, नॉट द फियर लीडर. ये मैं आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड एंड फ्रेम योर एक्शंस फॉर चाइल्ड्स नीड. Give the time to the kids, channelize their energy. A secret sharing time of 15 minutes. हमेशा अपने बच्चे के साथ एक सीक्रेट शेयरिंग टाइम रखो. कि किस तरह से आप अपने बच्चे को बच्चे के सीक्रेट्स को कैसे आप जानोगे. तब जानोगे जब आप अपनी सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करोगे. मैं और मेरी बेटी हमेशा सीक्रेट शेयरिंग करते हैं, ताकि जब वो बड़ी हो जाए ना, उसको ये आदत रहे, वो अपने सीक्रेट्स मुझे शेयर करे. ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और इश्यूज विथ स्टोरीज, नॉट थ्रू इंस्ट्रक्शंस. गाइस, आप जितना इंस्ट्रक्ट करोगे ना, उतना उसे प्रॉब्लम होगी, वो सीख नहीं पाएगा. वो सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शन को फोकस करेगा. बट अगर आप साथ मिलके उसके साथ करोगे एक चीज, फिर वो उसको फॉलो करेगा. इंस्ट्रक्शन को जब हम इंस्ट्रक्शनल वे पे बोलते हैं ना, तो वो एक्चुअली डोमिनेंस शो करता है. तो विच शुड नॉट बी द केस. आप डोमिनेट करोगे तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा. आप प्यार से बोलोगे तो बच्चा सीखेगा. रेगुलर टच विद स्कूल. स्कूल के साथ रेगुलरली आप मीटिंग्स कंडक्ट करो थ्रू पीटीएम और थ्रू फीडबैक थ्रू ईमेल और फोन्स, so that your kids concerns can be addressed. और उसको आप फीडबैक दो कि किस तरह से वो ग्रो कर सकता है. मॉनिटर स्कूल एक्शंस एंड बी पार्टनर विद स्कूल फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ. डियर पेरेंट, जब आप अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए काम करते हो, वो बच्चा ग्रो करता है. बट अगर आपने उसकी गलतियों को उस पिन पॉइंट करा, तो वो ग्रो नहीं करेगा. वो सेल्फ एस्टीम डाउन होगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आहिस्ते आहिस्ते वो नीचे जाएगा. जब वो बड़ा होगा, ये जो उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस नीचे गया, वो आहिस्ते आहिस्ते डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी तो उसकी एंजाइटी है जिससे वो वायलेंट बिहेव कर रहा है, क्योंकि घर में वो वही एटमॉस्फेयर देख रहा है. आप जब उसे बुली करते हो या आप जब उसे डांटते हो, मारते हो, तो वो वही सीखता है, तो वो भी वायलेंटली बिहेव करता है. पर जब वो बड़ा हो जाएगा, ये वायलेंट बिहेवियर कुछ और में निकल जाएगा. सो यू नीड टू थिंक कि आप अपने बच्चे को अभी से संवारोगे
या फिर तब तक वेट करोगे जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए. So thank you parent for joining the session. I hope you all have learned something, and definitely we will try to cover more subjects. For the acts, for the laws, we have different we will have different sessions in which we will train the participants on national education policy, on NCPCR guidelines, of the requirements of Right to Education Act, state education law. We will train the schools. Also, we are working for school compliances. We help the schools for maintaining their compliances. We guide the schools for taking CBSE affiliation and applying for recognition. If you want to know about this and you want the guidance from us, then please connect with us, and please email to me and my organization. Thank you so much. Thank you so much, participants.